Hi guys, I've got Gaurav with us today. Let's see how he can join us. So yeah, just give us a couple of seconds and Gaurav should join us now. Let's check. Hi love. Hi Ansh. Hey buddy. Hi Mir. We are waiting for a friend to join and we're doing a session along with him today. So let's see where that goes. I'm good Ansh, thank you. How are you? मिहिर हाय बड़ी थैंक्स फॉर आस्किंग इस संडे को शायद क्लास करते हैं अपन आज ही त्रिदल सर से बात हुई है तो मोस्ट प्रोबली संडे को क्लास होगा हाय गौरव ओके सो गौरव यू आर जॉइनिंग मी सो यू हैव टू जॉइन दिस कॉल गो लाइव विथ ओके बस नाउ ओके हाय गौरव हाय अगेन Hello, hello. Hi. Okay, so thanks for coming online with me. Some of my students are also here now. Okay. So just wanted to just छोटी मोटी बात करते हैं जो कल हमने जो बात की थी उसी के रिलेटेड थोड़ा बहुत और बात करते हैं. So why don't you give a brief introduction of yourself first of all, Gaurav? Okay. So basically, myself, I am a teacher. I am a TGT Social Science at Kendriya Vidyalaya, Air Force Station, Bidar, Karnataka. Simultaneously, I am also doing PhD. I am in my fourth year of PhD. I am doing PhD from history, and basically my specialization and interest area is Indian Sanskrit literature. So I am working on Sanskrit literature right now and Okay. doing my PhD. Okay. That's it. And approximately how old are you, Gaurav? I am 29-year-old. 29, that's very young. And how did you come to know about me? How did you find me? I saw one of the videos on YouTube. You were sitting Okay. with Dr. N.K. Sharma of Reiki Ili Foundation. You were talking about your experience as a raw foodist and how you discovered raw food and how it helped you to heal your ankylosing spondylitis. So from there, I got to know about you. Perfect. Yeah. So thank you for noticing. And what health problems are you facing? Or tell us a little bit about your health history, your medical history. Basically, I have though I have been thin, but Hello. I think Gaurav, your internet is yeah. Let me try to bring back in. Yeah, Gaurav should join us again in a minute. Yeah, so I'll continue what he was telling. So he found me through one of the YouTube videos he saw of mine, and he called me yesterday. We had a long chat, and it's very interesting. It's a very interesting case that he's very frequently very ill, and after spending almost a year on all kinds of blood tests, doctors still don't know what his प्रॉब्लम इज व्हाट हिज डिजीज इज सो मतलब उनको इतने टाइम से बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो रहे हैं इट्स नाइस इफ वी कैन हियर इट फ्रॉम हिम बट इट्स वेरी ऐसा भी होता है कि कई लोग को बहुत सीरियस प्रॉब्लम होते हैं द मेडिकल साइंस just doesn't know. You get your medical tests, you get your MRI, you get everything, and still they don't know what's wrong. So ऐसे केस में क्या करना अगर आप या आप में से कोई ऐसा बीमार हो जाता है कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि क्या करना तो what do we do in that case? Let's see if he is back on. Okay, we can bring K online. K also was trying to speak to me. Uh, K, can you see that? Hi, Deepak. Oh, even K is unable to come on. That's interesting. Oh, hi, Gaurav. Okay, I'll bring you back in, Gaurav.
Hi Deepak, I'm good, buddy. How are you? Hello. Yes, Gaurav, sorry we lost you for a moment. So, Okay. can you please start again and tell us about your medical history? So I was talking about my medical history that in October I felt jaundice and typhoid like something. I got admitted in hospital and Hmm. two October unit last blood year, was 2019. October 2019. You got Before that, typhoid and jaundice. basically something like this. Hmm. I was very active in my life. I was healthy, though I was thin always, around 6 feet height, but thin. So, but I was very active. But in October, I got ill, 2 unit blood transfuse, 15 days rest. I got very well. I became again very active. I went to Kerala and to present my paper, and everything was going well. But in January, Hmm. again, I started to feel stomach issues, diarrhea, and all. So I went to the doctor, and doctor said that your eyes are yellow, pale again, so you should get tested. I tested, and jaundice was again there, and my liver and spleen were enlarged. हाँ, सो So सी एक्चुअली लोगों को जॉन्डिस कई लोगों को पूरी जिंदगी में एक बार नहीं होता और आपको 6 महीने के अंदर 2 बार जॉन्डिस हो गया। हाँ हाँ, हाँ। तो वही फिर जनवरी में मेरे को ऐसा कोई सिम्टम नहीं था. फॉर एग्जांपल आई वाज पेन फ्री और एवरीथिंग, बट ग्रेजुअली बाय द टाइम मार्च केम आई स्टार्टेड टू फील पेन. फरवरी में हम्म। इट्स initiated, but in March, by the time March, I started to feel pain around my rib area. Then it shifted around my back also. So I was thinking that it is just because of the liver and spleen issue that it is enlarged. So I was mainly focusing on that aspect. The liver and हम्म। spleen are enlarged, and because of that I am feeling the pain. So I हाँ, went to एंड multiple सॉरी टू इंटरप्ट gastroenterologists. गौरव, बट दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल के कुछ होता है और हमको पता ही नहीं चलता। एक दिन जॉन्डिस हो रहा है, दूसरे दिन रिब्स में दुख रहा है और हमको पता ही नहीं दोनों का कनेक्शन क्या है। और हम तो वही हाँ सोचेंगे ना, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं, हम तो वही सोचेंगे कि हो सकता है उसका इसका कोई कनेक्शन होगा, और हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, वही मेरे साथ हुआ. तो मैं बहुत सारे गैस्ट्रो के पास गया. वो मेरा एंडोस्कोपी से लेकर सब करा करा. लीवर आपका हेल्दी है बट इनलार्ज है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है. देन ब्लड टेस्ट, इतने ब्लड टेस्ट करे तो ये भी पता चला मुझे. उससे पहले तो मेरे को मैं सच बता रहा हूँ, 21 अक्टूबर में, उससे पहले मेरे को अपना ब्लड ग्रुप तक नहीं पता था. बिकॉज आई नेवर थिन था, हाँ, तो ब्लड देने हाँ, की हाँ, कभी वही तो है और ना, वही कभी. तो है पूरा गेम के जब हम हाँ यंग होते हैं तो हम लोग सोचते ही नहीं कि हमारे के साथ कुछ भी होगा। मेरा भी हाँ एक्चुअली ऐसा था, जब तक मुझे डिजीज नहीं हुआ मुझे अपना ब्लड ग्रुप भी पता नहीं था, फ्रैंकली। हाँ. सो सो एग्जैक्टली मेरे हम को. लोग जब यंग होते हैं तो कुछ सोचते ही नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है। एंड यू आर ओनली 29, सो मतलब आप भी ऐसा ओल्ड तो हो ही नहीं। बट हाँ एक्चुअली यही है, हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, उसके हिसाब से 30 साल की उम्र के आसपास आपको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो यही हुआ कि मेरे को अपना ब्लड ग्रुप पता चला, और इतने सारे टेस्ट टेस्ट टेस्ट. तो फाइनली वो, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम था, तो एक ये भी कहा कि चलो एक बार थैलेसीमिया कराओ. तो थैलेसीमिया माइनर निकला. सो मैंने सोचा क्या पता ये एक रीजन हो जिसकी वजह से मैं फेस कर रहा अभी हूँ. तो मैं और ब्लड आप जितने एक्सपर्ट के टेस्ट पास. करवाएंगे उतने डिजीज तो निकलते ही जाएंगे। आप जितना हाँ, टेस्ट करवाओ तो उतना कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। मैं ब्लड एक्सपर्ट के पास गया, जो हेमेटोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं. एंड हेमेटोलॉजी वाले जो थे, वो उन्होंने क्या करा, वो बेसिकली उन्होंने सारे टेस्ट करे. उन्होंने भी दवाइयाँ लिख दी, जो भी है आपकी ब्लड बढ़ाने की या जो भी देंगे. लेकिन एंड में यही कहा कि जो आपके इशू है बैक पेन वगैरह, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दी थैलेसीमिया माइनर. बिकॉज थैलेसीमिया माइनर तो कई बार पूरी लाइफ के लोगों को पता भी नहीं चलता है, एंड दे हैव थैलेसीमिया हाँ, माइनर एंड दे लिव ए नॉर्मल लाइफ. सो मैंने कहा हाँ, ओके. हाँ, हाँ। तो ये भी एक इशू हो गया. फिर मैं ऑर्थोपेडिक्स के पास जाने लगा कि ये ऑर्थोपेडिक का मामला हो गया फिर तो अब, कि ये मेरी हाँ, कमर में दर्द जो है. ऑर्थोपेडिक ने ये कह दिया कि हाँ, कि आपका जो पोस्चर्स है, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो, पीएचडी कर रहे हो, बैठने का जॉब है, पूरा टाइम बैठने बैठने का काम है. सो आपका हाँ, पोस्चर बिगड़ गया है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू करेक्ट योर पोस्चर, एंड कुछ दवाइयाँ लिख दी. सो वहां पे लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा था. सो अच्छा, तो लेट मी जस्ट यही. रिकैप, एक बार रिकैप करते हैं। तो पहले आपको एक बार टाइफाइड जॉन्डिस हुआ, फिर ठीक हो गया। हाँ फिर कुछ ही महीने के अंदर वापस टाइफाइड जॉन्डिस हुआ, फिर उसके बाद आपके रिब में दुखना शुरू हुआ, फिर बैक में दुखना शुरू हुआ। हाँ सॉरी। और फिर डॉक्टर्स ने जब टेस्ट किए तो पहले उनको पता चला कि आपका लिवर और स्प्लीन एनलार्ज्ड है, स्वोलन नहीं है, मतलब सूजा हुआ नहीं है, हाँ, सिर्फ बड़ा है।
बढ़ गया है और वो साइज में, बड़ा। जिनसे वो कह रहे थे कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका लीवर तो बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि आई करेक्ट। वेंट टू हाँ सी। मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड दे हैड दिस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ही वाज सेइंग दैट योर liver is very healthy, no problem, just it is enlarged, so what medicine I should करेक्ट। give you? There is no सो medicine मतलब for it. आपने आपको जो टाइफाइड जॉन्डिस हुआ 2 बार, उसका रीजन पता नहीं चला। फिर नहीं आपका पता नहीं लिवर चला। और स्प्लीन एनलार्ज क्यों है, उसका भी रीजन पता नहीं चला। नहीं, फिर रीजन पता उसमें नहीं से चला। देखते देखते आपका रिब में क्यों प्रॉब्लम है, उसका भी रीजन पता नहीं चला। फिर आप नहीं, रीजन पता। हीमेटोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने ब्लड में आपके थैलेसीमिया ढूंढ निकाला, पर उसका भी हाँ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब देखा हो क्या रहा है, आप जितने डॉक्टर्स के पास जा रहे हो वो लोग, आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनोलॉजिस्ट के पास गए तो उसने आपके लिवर हाँ में प्रॉब्लम दिखा दिया। आप हाँ। फिर वो ऑर्थोपेडिक के पास हेमेटोलॉजी गए के तो उन्होंने पास आपके गए तो पोस्चर में प्रॉब्लम थैलेसीमिया बताया। माइनर निकल गया। और हाँ जब फिर मैं करेक्ट, फाइनली उसके हीमेटोलॉजिस्ट के पास पास, गया, क्या कहते हैं, ऑर्थो के ऑर्थोपेडिक। पास गया, तो वो पोस्चर इनकरेक्ट के निकाल के उन्होंने अपनी बात कर दी। मतलब तो थैलेसीमिया का, लिवर का, टाइफाइड जॉन्डिस का और पोस्चर का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोई एक कनेक्शन नहीं है, साथ ही देखो। विद इन ए हाँ, ईयर ये सारी चीजें एक साथ आने लगी, जबकि आज तक मेरी लाइफ में आई आई नेवर हैड एनीथिंग लाइक दिस, आई वाज वेरी हेल्दी। दिस इज एग्जैक्टली, मैं अपने स्टूडेंट्स लोग को वही बताता हूँ कि जो लोग मतलब अनहेल्दी खा रहे हैं, अनहेल्दी मतलब ज्यादा बैठ रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मैं उनको वही बता रहा हूँ कि भले ही आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई है, आप जैसे ही 30 साल के होगे ना, एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाएगी। और आप आपका टोटल खर्चा कितना हुआ उस 6 महीने में, आपने कितना खर्चा किया? मेरा 6 महीने में बहुत खर्चा हुआ होगा, लाखों खर्चे हो गए होंगे। पाँच पाँच देखो। हजार रुपए का तो कोई टेस्ट हो रहा है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 1000 1500 रुपए से कम की नहीं होती है एक अपॉइंटमेंट। और फिर एक बार हाँ, हॉस्पिटलाइज रहा फिर मैं 3 दिन के लिए, तो वो तो लाखों में खर्चा हुआ मेरा तो इस बीच। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या, उसमें पता है आपको नए नए डिजीज आ सकते हैं। अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते टाइम कुछ इन्फेक्शन लग गया तो वो सीधा आपके ब्लड में इन्फेक्शन चला जाएगा। हाँ, ये चीज भी मैंने हेमेटोलॉजिस्ट से बात करी कि क्या लीवर इनलार्ज, कई बार ये हो जाता है कि आपके भाई वो आप बॉडी रिएक्ट करती है इस तरह, तो वो कह रहा है कि आपका जो लीवर इनलार्ज, जब अक्टूबर में आपका अल्ट्रासाउंड हुआ तो स्प्लीन और लीवर साइज नॉर्मल है, लेकिन जनवरी में वो हम्म। इनलार्ज है। तो अगर ब्लड तो एनलार्ज ट्रांसफ्यूजन क्यों की हो गया वजह। वो भी नहीं पता, कि लिवर अचानक क्यों हाँ बढ़ने लगा वो नहीं बताया। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता तो शुरुआत के 10 15 दिन के अंदर ही आपको उसके साइड इफेक्ट, इवन जब चढ़ रहा होता है ब्लड तभी दिखना शुरू हो जाता है, तो इतने दिनों बाद, 1.5 2 महीने बाद वो साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है। सो उनका कहना ये था, जो हेमेटोलॉजिस्ट थे हाँ, उन्होंने ये तो कहा। मतलब वो भी पता नहीं है कि बेसिकली वो हो, इनमें से सारी नई नई चीजें मिल रही है लेकिन एक भी चीज का कारण नहीं पता है। नहीं, कारण नहीं पता। फिर मेरे को ये भी लगने हाँ। लग गया, कई बार तो मेरे को दिमाग में ये भी चलने लग गया बहुत बार तो, कि शायद ऐसा ना हो कि मैं ही अपने अंदर बीमारियां खोजने लग गया हूँ, कि मैं ही मेरे दिमाग में और कुछ नहीं कि अच्छा दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो हाँ, रहा है, हम दर्द अगर हो वो रहा है। नेगेटिव सोच रहे हैं और हम ही बीमार पड़ रहे हैं कि मैं बीमार हूँ सोच के, क्योंकि क्या है, इतने हाँ, सारे डॉक्टरों को मिलके जवाब नहीं मिलता ना, तो आदमी फिर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार डॉक्टरों को कि नहीं पता, शायद मेरे को तो ऐसी शायद कोई कि भारी शायद बीमारी तो नहीं होगी। शायद मेंटली, हाँ, कि शायद मैं मेंटली अपने आप को ज्यादा वो ओवर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मेरे तो कुछ पता ही नहीं है कुछ हो क्या रहा है। क्योंकि जिससे के पास जा रहा हूँ वो एज सच कुछ नहीं निकाल रहा है, सच तो वो यही कह रहा है कि ठीक है, लेकिन मेरे को जो चलने में बैठने में प्रॉपर बिना सपोर्ट के बैठने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सब बात है, वो सब है। तो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको पता नहीं कि आपके बॉडी में इतने सारे प्रॉब्लम अचानक कहां से आने लगे। यस। परफेक्ट, ओके, चलो आगे बताओ कि ये फिर क्या हुआ, इतना सारे डॉक्टर्स, इतने एक्सपर्ट्स, इतने लाखों रुपए, 6 महीना, टाइफॉइड जॉन्डिस थैलेसीमिया माइनर, लेकिन फिर भी इसमें से कोई मेजर रीजन नहीं है, फिर क्या हुआ? हाँ हाँ, कोई, क्योंकि वो सारी चीजें, अगर लीवर भी लार्ज है तो वो इसको भी ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनका लीवर इंलार्ज हो गया है। हाँ, थैलेसीमिया आपको माइनर थैलेसीमिया लोग माइनर से पूरी भी फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी जिंदगी लोग जी जाते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर डजंट डू एनीथिंग, तो उससे भी फर्क नहीं कुछ पड़ता है। पोस्चर हाँ, इनकरेक्ट वाली जो बात कही, मैंने कहा पोस्चर इनकरेक्ट तो मैं इतना ज्यादा एक्टिव हूं कि चलो अगर ठीक है, मैं किसी दिन पूरे दिन बैठ के मैंने लैपटॉप पे काम भी किया है, तो अगले दिन मैं कम से कम 10 15 किलोमीटर पैदल भी चल रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लाइब्रेरीज जा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। सो मैंने कहा और यार बचपन ऐसा से तो कोई बीमारी है नहीं आपको, बचपन से कोई नहीं, बीमारी नहीं और है? कोई बिल्कुल नहीं है, कोई बीमारी में मैं बीमार रहा ही नहीं हूँ ज्यादा। हाँ, अब फिर क्या हुआ? चलो, आपका इतना मतलब डिजीज आगे बढ़ गया, लाखों के खर्चे हो गए, अचानक 6 महीने में आप पूरे कंफ्यूज हो गए, फिर आपने क्या ट्राई किया? और आपकी कमर फिर दुख रही है, आपकी रिब्स दुख रही है और आपकी बैक दुख रही है,
आपसे हाँ तो चलना फिरना मुश्किल हो गया, आपसे उठना बैठना मुश्किल हो गया, डॉक्टरों को कुछ पता नहीं है। हाँ, तो उसके बाद हाँ। मैंने अब जो ट्राई किया है मैं वो बताता हूँ कि फिर उसके बाद अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेने के बाद जब जब हर तरह की दवाइयाँ मैंने ले ली, चाहे वो ऑर्थो की हो या हेमेटोलॉजी की हो या फिर किसी लीवर वाले की हो, इवन आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, सारी जब ले ली उसके बाद मैंने धीरे धीरे मई से मैंने एक ट्रांजिशन स्टार्ट करा, जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना और रिसर्च करना शुरू करा, बिकॉज बीइंग ए रिसर्चर वो है कि आखिर क्यों, हैबिट है, वो हाँ, क्यों, आपका एक एटीट्यूड है हाँ वो रिसर्च क्यों, करने का। हाँ। कि क्यों तो है, तो क्यों हुआ, तो वो क्यों ढूंढते ढूंढते प्लांट बेस्ड ईटिंग और ये सब, क्योंकि हाँ आउटसाइड फूड मेरा ही हमेशा से ही रहा है कि मैं स्कूल से जब पढ़ाने के भी आता था तो अपने साथ घर पे जब आ रहा हूँ तो छोले भटूरे लेकर आ रहा हूँ या फिर कुछ भी करेक्ट। तो ऐसी अब चीज पता घर पे चला लेकर आ रहा हूँ आपके कि मैं बचपन से प्रॉब्लम क्या था। कि बीमारी कोई नहीं थी, लेकिन हम हाँ बचपन से ही गलत खाना अपने पेट में डाल रहे हैं और अचानक हाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक्चुअली मुझे जयपुर में एक बहुत अच्छे फैमिली मिले और उसमें एक अंकल को कैंसर है। और वो हाँ जी अंकल ने ना कभी बीड़ी सिगरेट पी, ना कभी शराब पी, ना उन्होंने मतलब हार्डली कभी बाहर का खाया होगा। वो शादी ब्याह में भी जाते हैं ना तो भी घर से खा के जाते हैं। हाँ मतलब वो जी होटल वोटल का कभी खाते भी नहीं, शादी ब्याह का नहीं खाते, और तो भी उनको कैंसर हो गया पेट का। अब हाँ जी सब उनको पूरे फैमिली को यही हो रहा है कि भाई इनको कैंसर हो ही कैसे सकता है, ये तो मतलब एकदम अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन हम ये जो पका हुआ खा रहे हैं वो सब चीजें पेट में जमा होती रहती है 10 20 30 सालों तक, और वो जहर बन के नई नई बीमारियां हमारे ओर फेंकना शुरू करती है। सो हाँ, तो यही है कि अब ये मैं यूनिवर्सिटी जब जाता था तो यूनिवर्सिटी जाने का मतलब ही यही है कि आप बाहर खाओगे, आप स्कूल करेक्ट पढ़ाने करेक्ट, जा हमने रहे भी हो। कॉलेज पूरी कैंटीन में ही निकाली है, कैंटीन में ही हाँ कॉलेज कैंटीन में ही निकाली। निकलती है, कैंटीन में हाँ। निकलती है, चाय में निकलती है, जो जहां एक व्यक्ति मिल गया उससे बात हुई उसके साथ चाय पी, फिर दूसरा कोई मिला उसके साथ चाय पी, फिर इस तरीके से और बाहर का खाना ही खाया, लंच हुआ तो बाहर खाया, यूनिवर्सिटी गए तो ये करेक्ट हुआ। करेक्ट। इवन जब मैं पढ़ाने लग गया तब भी ये था कि लंच हुआ, थोड़ा बहुत तो घर से ले गया, लेकिन अर्ली मॉर्निंग निकला हूं तो इतना कुछ लेके निकला नहीं हूँ, लंच हुआ है, और ऑब्वियसली इट इज ए वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग जॉब टीचिंग जो है, तो लंच में जो भी कैंटीन में बनता है वो आते हैं कुछ चाहिए, हाँ ले आओ, ब्रेड रोल ले आओ, ये ले आओ, ठीक है ऐसा समोसा ले आओ, पकौड़े ले आओ। हाँ मेरा भी पूरा समोसा ले बॉम्बे आओ, में मैं जब पकोड़े पढ़ाई ले आओ, करता और था तो इवन वड़ा पाव खा के ही इवन निकलता था। आफ्टर even after school around 3 or 4 when I'm reaching home I am taking कि अब छोले भटूरे ले जाता हूँ, मेरा खाना मत बनाना, अभी आज समोसे लेकर आ रहा हूँ, मेरा खाना मत बनाना। सो ऑल दिस थिंग्स वाज देयर ऑलरेडी देयर, सो यस फूड तो था। तो अब मैंने ये जब हाँ। जानना शुरू करा मई के आसपास, अप्रैल तक तो मैं बहुत परेशान होता रहा, बहुत ज्यादा परेशान रहा इस बीच, और अब अभी भी पूरा तरीके से हील नहीं है, अभी भी मॉर्निंग, लेकिन अप्रैल तक तो मैं इतना ज्यादा परेशान था कि कुछ निकल के आ नहीं रहा है। फिर मैंने थोड़ा करा और उसके बाद मैंने डाइट में हल्का सा चेंज करना शुरू करा। सबसे पहले तो दूध हटाना, दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट को मैंने अपनी डाइट से निकाला, और हाँ, उस दौरान भी लेकिन काफी इफ्स एंड बट्स चलते थे कि ले लेता हूँ, नहीं यार दूध से क्या दिक्कत है, क्योंकि दूध ले बचपन लेते की हैं। आदत है ना। हम लोग सोचो जब से पैदा हुए तब से दूध पी रहे हैं, 20 30 सालों तक अपन कुछ चीज कर रहे हैं, तो थोड़ी ऐसे ही छूटने वाली है। हाँ तो वही है कि वही होता है। हाँ। दूध की इतनी ज्यादा आदत थी तो दूध निकालने में टाइम लगा, बट दैट ट्रांजिशन वाज स्मूथ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ए पर्सन विद ए डिटर्मिनेशन दैट इफ आई वांट टू डू समथिंग आई वांट टू डू समथिंग। सो परफेक्ट, वही ज्यादा चाहिए। दिन नहीं हाँ। लग ज्यादा दिन मुझे नहीं लगे तो मैंने वो दूध का जो अपना था वो खत्म करा। फिर कुक हम्म। और अनकुक वाला मेरे को पता भी चल गया था कि कुक अनकुक का सीन क्या है, तो मैं बॉयल पे आया, लेकिन उसके बाद कि चलो ऐसा थोड़े हेल्दी शिफ्ट कर लेता हूँ, व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले आता हूँ, ओट्स ले आता हूँ, मिलेट्स ले आता हूँ, इस तरह के शिफ्ट मैंने करने शुरू कर दिए थे। ऑलरेडी वॉकिंग करना, सन बेदिंग करना, ये शिफ्ट मैंने शुरू कर दिए थे मई से ही, लेकिन जब अगस्त के स्टार्टिंग तक, और इवन हम्म। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया जो इस तरह की चीजें कराते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक डाइट चार्ट भी बना के दिया जिसमें 1 टाइम 1 ग्रेन खा सकते हो, ये कर सकते हो, उन्होंने मेरे से ये कहा। लेकिन मेरे को अपनी तरफ से जब मैं खा भी रहा था तो मेरी जो नहीं ठीक हो रहा था, बस जो मेरे हम्म। रिब्स के एरिया है वो दर्द हल्का सा कम हुआ था, लेकिन बैक पेन और इवन मेरी नेक भी स्टिफ होना शुरू हो गई थी, इतनी हाँ, स्टिफ अब होना देखो शुरू हो आपका गई थी। नेक भी अभी सफर हो रहा है। हाँ। हाँ गर्दन नेक नहीं भी मुड़ स्टिफ रही थी होना शुरू, आपकी। हाँ। हाँ अगस्त के स्टार्टिंग में ये था कि मेरी गर्दन भी बहुत ज्यादा स्टिफ होनी शुरू हो गई, एंड फिर उसको
अब मेरे को और रॉ वगैरह के बारे में पढ़ चुका था, लेकिन वो जो हम्म। फाइनल जंप होती है एक बार करी मैंने, फिर एक हफ्ते या 4-5 दिन तक रॉ रहा, लेकिन दोबारा से मैंने फिर वो वन टाइम ये ग्रेन वाला आइडिया वो शुरू मन कर करता दिया है कि कि नहीं। मैंने भी जब छोड़ा था तो मन बहुत करता है, वो सब्जी दाल रोटी बहुत याद आता है। हाँ, और अभी बहुत भी याद जब आता है मेरे क्योंकि सामने हमको हाँ। बनता है घर में, लेकिन अब मेरे को क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती है, क्रेविंग तो अब बिल्कुल नहीं मेरे होती है, सामने वो कोई। एक बार वो खाना छूट गया ना, कोई गलती हाँ। से भी वापस चालू नहीं करेगा। जिसने एक बार पका हुआ खाना छोड़ दिया वो बंदा हम्म। गलती से भी वापस शुरू नहीं करेगा। वो कभी कभी खा लेगा ऐसे ही टेस्ट के लिए, पर बाकी हाँ। वो आप रोज खा ही नहीं सकते। एक बार वो खाना आपने छोड़ दिया, फिर वो खाना आप हाँ। कभी खाओगे ही नहीं। आप हमेशा ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डाइट पे ही रहोगे हमेशा। हाँ, तो बेसिकली फिर क्या है कि जब ये सिचुएशन आ गई उसके बाद मैंने अब अगस्त 11 को मैंने रॉ फूड पे आया, और अगस्त 11 से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और मैंने जो चीज नोटिस करी, जो मेरी नेक की स्टिफनेस थी, वो एटलीस्ट 90% इज गॉन। नेक मेरी अभी मतलब स्टिफ स्टिफनेस नहीं चली है। गई आपकी, और आपने क्या दवाई नेक की, खाई इसके लिए? नहीं, मैंने दवाइयाँ इस बीच बंद कर दी, मैं अब कोई नहीं खा रहा। अगस्त तक करेक्ट। मैं दवाइयाँ ले रहा था। मैं, और बल्कि जब मैं दवाई ऑर्थो से दवाई लेकर आया था कमर वाली, तो उससे मेरा पेट दर्द और होने लगा था कि मैं दवाई लेता था, हाँ, एक पेट दर्द दवाई हो आप रहा। कोई भी दवाई खाएंगे तो उससे आपको दूसरी प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। मेरे दादा हाँ। दादी को दोनों को पार्किंसंस था, और दोनों ने सालों तक उसकी दवाइयां ली, और उसके कारण उनके पेट में जो छाले पड़ गए उनसे उनकी डेथ हुई। सो आप कोई भी दवाई खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 6 महीने तक लाखों रुपए खर्च करने और अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद क्या प्रॉब्लम है वो भी पता नहीं चला। और जब आपने डाइट, आपने जब अपनी दवाइयां सब बंद कर दी और एक्चुअली आपने दूध छोड़ा, पका हुआ खाना छोड़ा, तो आपकी तबीयत ठीक होने लगी। हाँ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 11 तारीख को 1 महीना होगा। सो मेरी नेक की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 90% सॉल्व हो गई है, कि हाँ ठीक है। बाकी आई एम वेरी होपफुल। ये हाँ, एक और चीज, पहले जब मैं, अब बाइक, जैसे बाइक या स्कूटी पे जरा सी देर भी बैठकर या फिर पैदल चलने से भी मैं हाँ डरने लगा था हाँ थोड़ा थोड़ा, तो हाँ, कि मैं बाइक भी या ऐसा, स्कूटी मेरी पे हालत जरा भी ऐसी ही थी। मैं अगर बाइक या स्कूटर पे बैठ गया तो फिर मैं उतर नहीं पाता था, जब मेरी हालत वैसी हुआ करती थी। तो हाँ, आई एग्री तो विथ यू, टू टू व्हीलर्स बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल। पूरे जो ये जो शोल्डर्स के बीच का एरिया है ना, पूरा हाँ, पहले तो निडलिंग जैसा सेंसेशन नीडलिंग होता जैसा है, फिर जलने लगता है। करेक्ट हाँ, करेक्ट, हाँ। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ और एक ऐसे जकड़ने लग जाएगा, स्टिफ होने लग जाएगा। सो और फिर आपकी जरा गर्दन सी नहीं देर, झुकेगी, आपकी गर्दन आगे भी नहीं झुक पाएगी। तो 15-20 मिनट की दूरी भी अगर बाइक से मैं ले रहा था, तो मैं इस तरह के पेन और इस तरह के उससे कि रिप, और आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि पेन रिप में हो रहा है, पेन बैक में हो रहा है, कहाँ हो रहा है नहीं, एग्जैक्टली। वो ये थ्रॉबिंग आप पेन किसी होता है भी, जो हर जगह एक साथ थ्रॉब करने लगता है। हाँ। सो इस तरीके से, तो अब जो है, अब जैसे पिछले 1 महीना होने वाला है, अब मैं जाता हूँ, ऑब्वियसली पेन होता है, अभी है पेन, बट मैंने नोटिस करा है कि नाउ एटलीस्ट इट इज लाइक दैट आई कैन टोलरेट सम, कि कुछ हाँ बेयरेबल काइंड ऑफ सिचुएशन में आ गया है, कि मैं उसे बेयर कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा घूमने फिरना, स्कूल भी जाता हूँ। अब मैं जैसे, अब मेरे को किसी भी काम से अभी, थैंक गॉड एंड एवरीथिंग इज लाइक दिस, कि अभी स्कूल नहीं जाना हुआ इस बीच, तो मैं, मेरे को कहेंगे कि एक इतनी बड़ी समस्या के बीच में एक छोटी सी रे ऑफ होप ये थी कि मेरे रिलीफ को इस मिल गई, बीच, हाँ रिलीफ मिल गई, हाँ, हाँ। कि मेरे को स्कूल नहीं जाना था, तो मैं इस चीज से स्ट्रगल कर पा रहा था। और अब जब स्कूल हाँ दोबारा से 21st से वो 50% स्टाफ के साथ खोलने वाले हैं, तो आई एम होपिंग दैट आई विल बी एबल टू एटलीस्ट सर्वाइव एंड सिट, कि बैठ जाओ या कुछ कर लो, एटलीस्ट जा पाऊँ बाइक पे पीछे बैठकर। सो इतने लेवल का मेरे को रिलीफ मिला है, और मैं आगे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, आई विल basically reverse and end this pain. So now you want to continue on this diet of fruits and vegetables? Definitely, I want to continue. Nobody wants to live in pain, because when you are having, for example, from last I have completed my second chapter of my PhD in last November only. But in Hmm. October I got ill, and from November and December went like I went for a conference, and since January I am facing this. So I am not able to do anything productively, and I want to Hmm. finish my PhD, and that is one of my dreams, that I want to do some classic work, not some shitty work कि करके खत्म कर दो यार,
मेहनत के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन से अब नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा माइंड इस समय इतना ज्यादा परटर्ब्ड है, डिस्टर्ब है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ. सो ऑब्वियसली आई वांट टू एंड दिस पेन सो दैट आई कैन यूज माय एनर्जी टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क इन माय लाइफ. जो मैं करता ऑफ था, मैं कोर्स. हमेशा से प्रोडक्टिव रहा हूँ और बहुत ही एक्टिव रहा हूँ. हम्म. अच्छा, जो लोग बोलते हैं, अभी मेरा एक यहाँ पे स्टूडेंट है भव्य, वो पूछ रहा है कि सर मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ B12. आप क्या बताएंगे? मैं भी एक जवाब दूंगा, लेकिन आपका क्या जवाब है कि मिल्क इज अ अ, गुड सोर्स ऑफ विटामिन हाँ, B12, विटामिन मिल्क बी लेना ट्वेल्व चाहिए? का मैं ये सारी चीजें मई से लेकर अब तक मैंने इतना रिसर्च, इतनी किताबें, इतने एमडीज और इतने प्लांट बेस्ड डॉक्टर से लेकर और नेचुरोपैथी करने वाले इंडिया में भी पढ़े हैं. बेसिकली मिल्क से नहीं आता है B12. B12 कहाँ से आता है? B12 जो है बेसिकली आता है बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया हम जो मिट्टी में पाया जाता है. उस हम्म. मिट्टी को जब वो घास गाय खाती है, क्योंकि हम्म. घास रॉ रॉ खाती है, तो वो जब हम्म. रॉ खा रही है उस घास को, तो वो बैक्टीरिया मिट्टी के जरिए उस गाय के अंदर आता है. और उस बैक्टीरिया, वो जब हम मिल्क पीते हैं तो वो सेकेंडरी ट्रांसफर एक तरीके से, और आजकल तो वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि गायों को भी विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि घासें जो है पेस्टिसाइड और ये सब वाली, और एक तरीके करेक्ट, से करेक्ट. उनके लिए सेपरेट घासें उगाई जाती है सो दैट दे कैन गो एंड बेसिकली हैव देयर फूड. तो हम्म. इसलिए अब उनको भी फोर्टिफाइड B12 देने की जरूरत हो गई, क्योंकि अब हाँ. बैक्टीरिया जो है, जो हमारे नेचुरली ह्यूमंस को भी मिलता था, क्योंकि ह्यूमंस भी पहले क्या, पेड़ से प्लग हाँ. करा और खाया, हाँ. जमीन से निकाला और खाया. तो जो हम्म. बैक्टीरिया है वो नेचुरली हमारी बॉडी में गया, और B12 की हमें ये था. और दूसरी चीज B12 के बारे में जो मैंने थोड़ी सी जानी, वो ये है कि ऑब्वियसली वी नीड B12, और अगर आप रॉ खाओगे तो उससे फायदा होगा, B12 आपको मिलेगा, लेकिन उसको लेकर बहुत सारे लोग डाउट भी रखते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा. लेकिन साथ के साथ मैंने ये भी देखा, बहुत सारे रॉ फूडिस्ट मैंने देखे जिन्होंने पूरी जिंदगी, भले ही B12 लो टेस्ट कराने जाओगे ऑब्वियसली लो दिखाएगा, हाँ. वेजिटेरियंस का भी लो दिखाएगा, और जो वीगन है उसका भी लो दिखाएगा, एंड इवन जो मीट ईटर है उसका भी लो दिखाता है. बहुत हम्म. रेयर है, अगर आप सप्लीमेंटेशन करोगे तो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो लो दिखाएगा. लेकिन क्या हम्म. उससे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ हुई है, दैट इज ए डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज देर आर नो करेक्ट. प्रॉपर स्टडीज टू शो दैट. यह हाँ. मॉडर्न मिथ है कि B12 एक बहुत बड़ी चीज है. सो वो तो विटामिन का पूरा एक इंडस्ट्री है ना, विटामिन का, और कुछ नहीं, वो हाँ, मल्टी इंडस्ट्री है पूरा. विटामिन विटामिन ये सब बातें एक पूरी इंडस्ट्री की तरह चलती है. तो वहां हम्म. पे सिचुएशन आ जाती है. तो विटामिन B12 का तो यह है कि इट इज नॉट ए मिल्क बेस्ड थिंग, इट इज ए बैक्टीरिया बेस्ड थिंग विच बैक्टीरिया इज, बेस्ड थिंग. हाँ. जो आपको मिलेगी रॉ फूड से मिलेगी, जो गंदे होते हैं. बेसिकली अगर सोचने पे हम इतने हाइजीन की तरफ हाँ. जा चुके हैं कि हमें हाँ, गंदा करेक्ट. और खाने से, सैनिटाइजर और हाइजीन और इतना सब हो गया है कि जो जरूरी चीज है वो भी चली गई है अभी. हाँ, आपको फॉर एग्जाम्पल 4-5 महीनों में मैंने ये भी जाना कि आपको ये जो है नंगे पैर रहना या बेयर फुट रहना भी कितना जरूरी है अपनी लाइफ में. स्पेशली करेक्ट. यू हैव टू गो आउट एंड बी बेयर फुट टू हम्म. कनेक्ट विद द अर्थ, बिकॉज यस. बच्चे को जब बचपन में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ फैक्टर है वो जो बैक्टीरिया, जो जरूरी बैक्टीरियाज है वो, प्लस हाँ. इम्यून हाँ. सिस्टम का डेवलप होना, वो ये बहुत सारी चीजें साथ के साथ होती है, क्योंकि हम मिट्टी में है, जो जो हमें एक बैलेंस क्रिएट करके दे रही है, सिम्बायोटिक यस. रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, जहां पे हमारे पास बैक्टीरिया भी है प्लस हमारा इम्यून भी डेवलप हो रहा है. अगर कुछ रॉन्ग चीज भी हमारी बॉडी में जा रही है, बच्चा मिट्टी खा गया या कुछ खा गया, सो वो भी डेवलप हो रहा है, इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है. बट दी इनफैक्ट सैंडल चप्पल स्लीपर कल्चर इज कटिंग दिस कनेक्शन बिटवीन अस एंड अर्थ. अग्रीड. और ये जो आपने ये जो बताया ना, वो बात भी कंप्लीटली आई टोटली अग्री विथ यू कि यू नो लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस ही एक्चुअली हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करते हैं. जब हम हाँ पैदा जी. होते हैं तो हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है, लेकिन उस इम्यून सिस्टम को पता नहीं है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, किसको अटैक करना है, किसको अटैक नहीं करना है. हाँ जी. और जब हमारा बर्थ होता है तो ऐसा कहा जाता है कि मदर के बॉडी के अंदर से बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, और वो जो पहले बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बोलते हैं कि चल भैया अब तू जाग जा, और हम अच्छे हैं, हमारे जैसे जितने भी आए वो सब अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरे आए उनको तो अटैक करना.
इसीलिए जो हाँ हम दही हजम करने में बैक्टीरिया यूज करते हैं, ये सब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होते ही है, लेकिन उनको हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करती। मतलब एक्चुअली अगर मैं आपको बचपन से ही, अगर मैं आपको माँ के पेट के अंदर से ही आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रखूं कि आपको कभी बैक्टीरिया या वायरस टच ही नहीं होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। हाँ, डेवलप नहीं होगा। हाँ, वो बैक्टीरिया और वायरस ही हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि हम लोग अच्छे वाले, हमको अटैक मत करना, वो दूसरे जो भी आ जाए उनको अटैक करना। हाँ जी, सो बिल्कुल ठीक। बैक्टीरिया और वायरस से हमारा कनेक्शन तो बहुत पुराना है। मतलब आप हर जगह आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, तो इससे तो मतलब वो वायरसेस इतने चेंज हो रहे हैं कि फिर नए वायरस से हम फाइट नहीं कर पाते। हाँ, हाँ, यही है। देन मिल्क का देखा जाए तो मिल्क में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आई कैन टेल अ फ्यू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से भी किसको क्या फर्क पड़ा है वो तो कहीं पे स्टडी है ही नहीं। आपको हाँ दूसरे बहुत सारे डेफिशिएंसीज है, आप साथ में अब्यूज भी कर रहे हैं, अल्कोहल ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, प्लस खाना बिल्कुल ठीक से नहीं खा रहे, सब पका हुआ सब तला हुआ खा रहे, तो ऑब्वियसली वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी नुकसान करेगी। बट बाकी हाँ जनरली अभी देखा जाए तो मैं धूप में इतना, मैं पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे स्टेट मैंने चल चल के क्रॉस किए, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत धूप लगी और धूप में मेरी चमड़ी पे घमौरियां भी हो गई। सो ऑफ कोर्स वो मतलब बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये विटामिन की कमी, वो विटामिन की कमी, पर जैसे मैं बड़ौदा वापस आया 2-3 दिन में वो सारी घमौरियां चली गई। सो हाँ। अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हैं कि मैं कोई विटामिन डालता तो शायद मुझे वो नहीं होता, पर अभी आप रोज 10 घंटा धूप में चलोगे तो स्किन पे कुछ तो असर तो होना ही है ऑब्वियसली। हाँ भी उसके लिए मैं विटामिन लूंगा तो उससे कोई फर्क, उससे अर्थ पे पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी केमिकल की फैक्ट्रीज में बनती है। सो वो पोल्यूशन होगा पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बेसिकली है, जो अगर मैंने आप, ये पिछले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में जाना है, वो ये जाना है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम किसी केमिकल की कमी की से बीमार नहीं होते हैं। कभी हम नहीं होते। बीमार होते हैं हम बीमार होते हैं कुछ नेचुरल चीज की कमी से, और उस नेचुरल करेक्ट, चीज को करेक्ट, कंपनसेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं केमिकल्स से। सो प्रॉब्लम करेक्ट, कहाँ पे आ जाती है, जो हमारा जो गैप है, जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का गैप है, वो यहीं पे आ जाता है कि हम नेचुरल डिफिशियंसी को केमिकल डिफिशियंसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एज इफ वी आर सम केमिकली डिफिशिएंट पर्सन, बट वी डोंट नीड करेक्ट। केमिकल टू fulfill our need. Second important हाँ, thing which I understood, and for which you can refer to the book of Dr. Colin Campbell. He has written a very famous book called Whole. कि आजकल जो मॉडर्न साइंस है, ये रिडक्शनिस्ट साइंस हो गया है। इट सीज करेक्ट। प्रॉब्लम इन ए वेरी रिडक्शनिस्ट वे, हाँ हाँ, छोटे लाइक लेंथ आउट ऑफ से, कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ पर्सपेक्टिव, कि आउट ऑफ आपकी आंखों में कॉन्टेक्ट प्रॉब्लम है चीजों तो को आंख को देखता है। निकाल के चेक करो। हाँ, आंख आंख की प्रॉब्लम, पैर की प्रॉब्लम, अब मेरा लीवर की प्रॉब्लम का मेरी टाइफाइड जॉन्डिस से, फिर उसका कमर के दर्द से, और फिर उसका बाद में मेरे थैलेसीमिया जो मेरे बचपन से रहा होगा, जो ने मेरे को कभी जीवन में परेशान नहीं किया, उससे क्या संबंध था, कुछ संबंध है भी या नहीं है, वो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। वो एक ऐसे एक संस्कृत में हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें अंधों के सामने हाथी खड़ा कर दिया, जो पूंछ हाथी पकड़ रखा रहा है वो देता है, जो सांप, पूंछ पकड़ रहा है वो बोल रहा हाँ है वो रस्सी सांप है, जो बता पैर रहा है, पकड़ जो रहा है वो बोल सूंड रहा है पकड़ रहा है खंबा वो है, पेड़ किसी को बता हाथी रहा तो है। दिखाई नहीं दे रहा। सो हाँ, किसी को हाथी नहीं दिखाई दे रहा, होल पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। सो वी हैव टू करेक्ट। अंडरस्टैंड दी दिस होल सिनेरियो दैट आवर बॉडी इज ए होल सिस्टम। कंपोजिशन, है ना। यू कैन हम्म। नॉट ट्रीट इट लाइक ए रिडक्शनिस्ट one part at a time, because you have to understand the problem arises in the body, not in a part. हम्म। So you have to fulfill नहीं। the need of the body, not the part. हाँ, अपने आप ही बॉडी जैसे उस आप फॉर एग्जांपल आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका सर दुखेगा, तो अगर सर दुख रहा है तो सर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पेट में है, आप भूखे हैं इसलिए आपका सिर दुख रहा है। हाँ, यही है। आप ये डिफिशियंसी की जब बात आएगी, तो डिफिशियंसी जो है वो हो सकती है मैनिफेस्ट किसी एक पार्ट में हो रही है, लेकिन वो यस। डिफिशियंसी बॉडीली लेवल पे हो रही है। सो अगर आप करेक्ट, ट्रीट करेक्ट। उस पर्टिकुलर पार्ट को करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एक्जिमा, सोराइसिस, की किसी एक बॉडीली पार्ट पे मैनिफेस्ट कर रहा है, आप लोशन पे लोशन उस पार्ट पे लगाए जा हाँ रहे हैं, हाँ तो वो मैनिफेस्टेशन साइट को आप ट्रीट कर रहे हैं। इट इज लाइक ट्रीटिंग द वन लीफ ऑफ ए ट्री, जबकि हाँ, रूट में को आपको रूट कोज क्या है आपको पता ही करेक्ट, नहीं है। करेक्ट।
So करेक्ट, that ये is the ऐसा होता thing. भी है सर। एक्चुअली कई लोग के घुटनों में दर्द होता है, तो वो लोग, मेरे नानी को प्रॉब्लम था, बहुत घुटनों में दर्द था और वो बाम मलते रहते थे, और सालों हाँ तक बहुत स्ट्रांग बाम मलने के बाद उनकी घुटने की चमड़ी पूरी छिल चुकी थी। हाँ जी। वही तो होता है ना, मतलब ये वो घुटने पे लगे हुए हैं और घुटना छील दिया पूरा, पर वो प्रॉब्लम शायद बॉडी में है, सिर्फ घुटने में नहीं है। दर्द भली घुटने में, लेकिन प्रॉब्लम बॉडी में है। वो तो यही चीज मैं पिछले 4-5 महीनों में समझाऊं, और जैसे ही मैंने योगेन भाई को यूट्यूब पे देखा और जब इन्होंने अपने लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर करे, सो आई कुड सेंस दैट दिस पर्सन इज बेसिकली स्पीकिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, एंड वट एवर ही वॉज स्पीकिंग, was he was basically connecting with me at that time. So I started to search him. I basically clearly अभी 2 दिन पहले तो मैं जानता भी नहीं था कौन है, लेकिन मैं इन 2 दिन के बीच में मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत बात करी हर लेवल पे, चाहे वो अब थोड़ा बहुत इसमें मेटाफिजिकल लेवल पे भी आ गया, फिलोसफिकल लेवल पे भी हमने थोड़ा सा चिट चैट कर लिया था, थोड़ा सा हमने सामाजिक लेवल पे भी करा और थोड़ा सा हेल्थ लेवल पे भी करा। मैंने ये देखा कि ये अब उस होलिस्टिक अप्रोच की तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तरफ मैंने मई के बाद थोड़ा सा कदम उठाने की कोशिश करी थी कि होल, वी हैव टू ट्रीट द होल नॉट द पार्ट। करेक्ट। आपने देखा है, आई थिंक अबाउट द इकोनॉमी, द सोसाइटी, द एनवायरनमेंट, द बॉडी, द डिजीज, एवरीथिंग। मतलब आप दवाइयां खा रहे हो, दवाइयां जो फैक्ट्री में बनती है, वो फैक्ट्री जो पोल्यूशन करती है, उसके कारण किसानों के खेत खराब हो जाते हैं। हम्म। ये भी सोचना है, वही है अगर हम वही। दवाइयां खा रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल हम अगर एसी यूज कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं, बाइक यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों से जो पेट्रोल यूज करना पड़ता है, वो पेट्रोल तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ईरान से, रशिया से, चाइना से। तो जितना चीज हाँ हमको ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, उतना हमारा देश गरीब रहता है, इसलिए फिर कोरोना जैसी बीमारियों के से लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचते। सो हर अब एंगल से सोचना है। आप, अगर मैं सिर्फ अपने बॉडी को ठीक करने के लिए पूरे देश को गरीब रख रहा हूं, या पूरे प्लानेट को प्रदूषित कर रहा हूं, और प्लस जितनी भी दवाइयां हैं वो आपको पता है जानवरों पे टेस्ट होती है, जानवरों को भी दर्द होता है, जानवरों को भी दिल होता है, जानवरों को भी शरीर होता है, उनको भी दर्द होता है, पर उनके ऊपर दवाइयां टेस्ट होती रहती है। तो ये भी सारा, जो अगर आप कर्म में बिलीव करते हैं, तो ये सारा कर्म आपके ऊपर आ रहा है। अगर आप एक दूध चीज पीते जो हैं तो एक चीज दूध। एक चीज जो मैं हाँ। और ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने खुद नोटिस करी इस बीच जो हुई, वो ये हुई कि मेरे साथ मैं अभी जो मेरी रीसेंट प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली वो सॉल्व नहीं हुई है, दैट आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन, बट समथिंग एल्स गॉट सॉल्व। समथिंग एल्स व्हाट? कि जब भी मैं मॉर्निंग में सोकर उठता था, जब भी मैं मॉर्निंग में सोकर उठता था, मैं जो मेरे नाक है पूरी तरीके से, एक तरीके से पूरी काम नहीं करती थी। इट इज लाइक आई एम वो हैविंग जब आप कोल्ड दूध एवरी पीते डे। थे, जब आप दूध पीते थे every तब की day बात है। every day I was waking up with symptoms like cold and sinus and symptom, and I have to sometimes take breathe heavily, for example कि हाँ। नाक से बहुत heavily आपको सांस लेनी पड़ेगी, ये होता था। ये मैंने हम्म। फिर जब मैंने धीरे धीरे, ये तो मेरा तभी शुरू हो गया था जब मैं रॉ पे आया भी नहीं था, जब मैं कुक्ड वन मील कुक्ड जैसे चल रहा था, बॉयल पे चल रहा था और मिल्क छोड़ दिया था, उसके कुछ दिनों बाद ही, 1-1.5 महीने बाद ही मैंने नोटिस करा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं सुबह जब उठ रहा हूँ तो सुबह मेरे आप को उठ रहे तो मेरी फ्रेश है, नाक, करेक्ट, ये मैंने भी हाँ फील मेरी किया है। नाक आप बंद सुबह नहीं जैसे है। उठते हैं ना, आपको मन करता है चलो जॉगिंग पे चलते, पूरा सिस्टम क्लीन होता है, आपका नाक, हाँ आपका लंग्स, आपका सिर। आप जब सुबह उठते हैं ना, मेरी तो ऐसा नाक लगता बंद है कि नहीं हम होती सो है। के उठे। हाँ। हाँ, और दूसरी चीज फिर मैंने नोटिस करी, क्योंकि मेरे को जो है कई बार जब फॉर एग्जांपल मैं घर से पढ़ाने गया हूँ, यूनिवर्सिटी गया हूँ पढ़ाने, घर पे जल्दी जल्दी चाय बना या पराठे बना या ब्रेड टोस्ट करा, कुछ करा, खा के गए। वहां पे जब मैं कई बार यूनिवर्सिटी जाता था, उस दौरान मेरे इतना ज्यादा हो जाता है गले में कि मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है। सो आई हम्म। समटाइम्स आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आई वॉमिटेड, एंड देन ओनली आई फेल्ट some kind of बेटर। relief, and then I went to teach. But that kind of sensation, even some people have mentioned कि इस तरह से क्यों तू सांस ले रहा है, इतना तेज तेज क्या हुआ जो ऐसे ऐसे तेज सांस ले रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, शायद कोई एलर्जी है। कैसे कई बार ना बहुत प्रेशर से सांस लेना पड़ता है, तब जाके सांस आता है। सो ये, हम्म। लेकिन अब वो नहीं है, वो अपने आप ही सी, सॉल्व हो गया एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली। और वो भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते, जैसा आपको दूसरा एक्सपीरियंस हुआ, वैसा ही होता है। 6 महीने निकल जाते, लाखों रुपए निकल जाते, यस 10 नई यस। बीमारियां निकल आती, लेकिन उसका रीजन नहीं मिलता कभी।
कि वो मैं क्यों गया हो रहा था, है उसका रीजन नहीं मिल इसके रहा। लिए भी गया था, इसके लिए भी गया था। आयुर्वेदिक छोटी सी दवाई दवाई दे थी कि जब भी ऐसा लगे गले में कुछ अटका अटका सा है, ये गोली पॉप अप करो, एंड थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाई है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ये खाते रहो। सारी मैं कर लेता आयुर्वेदिक था। दवाएं एलोपैथिक दवाइयों से ही बनती है, सारी आयुर्वेदिक मैं दवाइयां। मैं खा लेता था, गला ठंडा ठंडा हो जाता था, बस, और कुछ नहीं होता था, लेकिन वो वो तो सॉल्व। मेंथॉल दे रहे हैं ना आपको, वो मेंथॉल दे रहे हैं, हाँ उससे गला ठंडा लग रहा है, उससे आपके गले में कुछ बीमारी में फर्क नहीं पड़ रहा आपके। हाँ, so this हम्म। this problem solved itself, and this I noticed 1 or 2 months back. Okay, so I am waking up and I am not having that sinus kind of effect which was having with me from years and years, and I was struggling with the breathe in the morning. I have to go to flush, and वहां पे पहले मेरे को अपनी नाक साफ करना है, फिर जब भी अगर मैं कुछ ऐसा खा लेता हूँ तो फिर उसके बाद मेरे को ब्रीदिंग का हल्का सा प्रेशर की तरह यूज करके, कि प्रेशर करके नाक को ब्रीथ करना 1-2 बार, जिसे कई लोग लोग भी नोटिस कर लेते थे कि ये ऐसे प्रेशर करके क्यों सांस ले रहा है। सो समटाइम्स पीपल यूज टू से कि ऐसा क्या है, मैं बोलता था कुछ एलर्जी है शायद, लेकिन वो एलर्जी किस चीज की शायद, थी हाँ। मुझे नहीं पता। तो बट ये इन भी शॉर्ट एक। अभी आपको, आपका श्योर है कि अभी आप दूध और पका हुआ खाना अभी आप वापस शुरू नहीं करेंगे, पक्का? हाँ, मैं नहीं करूंगा, ये तो है, क्योंकि बेसिकली आप ये कहो ना, देखो लोग क्या सोचते हैं, इट इज नॉट ए मेडिसिन, आपको ये समझना होगा। जिस हम्म। फ्यूल पे हमारी बॉडी सबसे इफिशिएंटली काम कर रही है, और हम क्यों वो फ्यूल ना दे, क्यों हम अपने सिर्फ, और जीभ का लालच की भी मैं बात बताता हूँ। वो मेरे वही तो को सबसे बड़ी गड़बड़ है। होता क्या है कि जीभ जो है वो एक छोटा सा ऑर्गन है, और हाँ। उसके सामने हार्ट, लिवर, लंग्स, ये सब बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं। और हम हम्म। 5 मिनट या 10 मिनट के वो चटाके के लिए, स्वाद के लिए, और जबान को अच्छा लगे 10 मिनट के लिए, उसके लिए हम सारे शरीर को उम्र भर जो बोलते हैं ना, पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, हाँ, पूरे बॉडी को, सिर्फ एक जबान को अच्छा लगे उसके लिए। ये पागलपन है एक तरह से। ये तो मेरे साथ तब भी हुआ जब मैं वन वन मील ए डे पे आ गया था। जब 1 मील ए डे पे आ गया था, तब मैंने सॉल्ट डालना बंद कर दिया था। शुरुआत में मुझे फील होता था कि अरे कुछ मिसिंग है, बट लेटर ऑन आई डिडंट मिस द सॉल्ट, क्रेविंग खत्म हो गई, एंड अब तो मुझे सॉल्ट कुछ नहीं, क्रेविंग या स्वीट मुझे क्रेविंग याद नहीं है मैंने भी बिल्कुल। सॉल्ट शुगर कब खाया होगा, मतलब वो नेक्स्ट टू जीरो ही हो गया, और कुछ मिस नहीं करते कब भी वो। इनफैक्ट अब मैं अगर शक्कर वाली कोई भी चीज खाता हूं तो दूसरे दिन टॉयलेट पूरा स्टिकी स्टिकी और स्मेली फील होता है। आपने भी हाँ, फील किया होगा आप, हाँ, शुगर हाँ, खाने से बदबू आती है। शुगर खाने से बदबू आती है, इवन द स्वेट, यू कैन फील द बॉडी स्मेल एंड द स्वेट, दिस हाँ, चेंजेस, स्वेट का दिस। स्मेल बहुत गंदा होता है। जो लोग स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, उनका स्वेट का स्मेल बहुत गंदा होता है। So we can observe these things in the natural habitat of animals only, that you हम्म। see the shining wings of a sparrow. You don't हम्म। see that them watching regularly. Sometimes they do, obviously when there is a rain, they do like to wash themselves, but you don't find them regularly bathing themselves and regularly doing नहीं, all these things which we do to clean ourselves, and then deo and all ऑफ these कोर्स। things, and हाँ, still their wings are shiny. You will find that how they are maintaining this kind of shine in their body. You even see the करेक्ट। stray dogs. आप गली के कुत्तों को भी देखो, हालांकि वो अब बेकार की चीजें ज्यादा खाने लगे हैं, बट हाँ, स्टिल they have a some kind of bodily shine which humans don't करेक्ट करेक्ट। have. The एक्चुअली luster, the डॉग्स के लिए सबसे खराब चीज है शुगर, और उनको शुगर खिलाते इंसान। हम उनको रोटी खिलाते हैं और हाँ, हम उनको बिस्कुट खिलाते हैं, इससे वो कुत्तों की हालत बुरी हो गई है। तो तो ये जिन ये जो एक एक किन्नी ने कमेंट करा है, सर आपको इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, जिन लोगों पर रेप केस हाँ, वो हुए हैं, अनमोल जो ने कमेंट लिखा है कि आप मुजरिम है, जानवरों पे दवाइयां उनके टेस्ट ऊपर करते हो, सारे इससे टेस्ट अच्छा है करने रेप चाहिए, केस वालों जानवरों पे पे टेस्ट नहीं। करो। हाँ, तो जानवरों अनमोल, पे टेस्ट वाला जो मामला है, ये भी एक तरीके से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का ही है, जहां पे हमने ऑफ कोर्स। ह्यूमंस को सबसे ऊपर पेडेस्टल पे बैठा दिया है, दैट आवर लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन एल्सेस लाइफ। सो वी हाँ, ट्रीट हाँ, एनीवन एल्स एज सबग्रेडेड species or subgraded thing, but we treat ourselves as something superhuman and स्पेशल। something वही तो who's रीजन है। आप someone ये who's। जो भी लोग ये दूध पी रहे हैं, अभी दूध जो भी है वो बछड़े के हक का है। तो हम क्या करते हाँ, हैं, वो
बछड़े को वो लोग माँ के वो दूध के गाय के पेट के पास लेकर जाते हैं, और जैसे ही दूध फ्लो होना शुरू होता है वो बछड़े को हटा के सारा दूध बाल्टी में जमा कर लेते हैं मार्केट में बेचने के लिए। और हाँ ये गाय और there is बछड़ा no दोनों other रोते हैं। animal there is no other animal on the planet earth who drinks the Who milk of does that? Correct. any other Animal. animal. So Plus, only sir, humans do this silly thing. They think that drinking the milk of any other animal will give them power, but and in nature everything is very systematic. Here we have exactly. adopted, and basically we sometimes confuse culture with nature. What we Yes, have yes. developed as हमारा culture, कल्चर we है। consider them as nature. For example, eating हमारा grains. सर सॉरी, हमारा लेकिन कल्चर है कि गाय को लूटना, बच्चे का दूध लूटना, ये हमारा कल्चर है, और हम इसको नेचर बोलते हैं कि नहीं नहीं, दूध तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। प्लस जो दूध है उसमें होता क्या है कि क्योंकि वो बछड़े को गाय के पास लेकर जाते हैं, फिर जैसे ही दूध फ्लो होना शुरू होता है तो बछड़े को हटा देते हैं, सारा दूध बाल्टी में ले लेते हैं, इससे गाय और बछड़ा दोनों रोते हैं, और दोनों हाँ के बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है। लेट मी फिनिश। उनके बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है, वो एड्रेनलिन वो दूध में वगैरह में भी आता है। एक और प्रॉब्लम है एक टैनिक एसिड का, जो टैनिक एसिड गाय को प्रॉब्लम नहीं करती है लेकिन गाय के दूध से बछड़े को प्रॉब्लम करती है। तो वैसे जितने भी गाय के दूध के प्रॉब्लम से वो सारे पीने से हमको भी आ जाते हैं। प्लस कर्मा का तो प्रॉब्लम है ही, अगर मेरी माँ का दूध कोई लेकर बाल्टी में भर के मार्केट में बेच देता है और मुझे साइड में पेड़ से बांध देता है, तो मुझे और मेरी माँ को कैसा लगेगा? तो हमें क्या हक है गाय को और बछड़े को ऐसे लूटने का? प्लस गाय कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहती है, जैसा कि आपने बताया आजकल की गाय घास नहीं खाती, गाय पेट फूड खाती है, वो डायरेक्ट फीड आता है, फार्म फीड वो खाते हैं। जैसे हाँ वो कुत्तों के लिए वो पेडिग्री आता है, वैसे ही गायों के लिए, सब लोग के लिए मॉन्सेंटो वगैरह कंपनियां डायरेक्ट चारा बनाती है, वो डायरेक्ट चारा चारा खिलाया बनाते हैं, जाता है। पतंजलि भी बनाता है, सब सारी कंपनी चारा बनाती करेक्ट है करेक्ट। आजकल। और वो जो आप बता रहे हैं वो एग्जैक्टली वही होता है, इसलिए गायों को भी B12 विटामिन लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी ये घास नहीं खा रहे, ये फीड खा रहे। एंड हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब प्रॉब्लम्स के कारण, और वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, इसके कारण दूध में रेगुलरली ब्लड और पस दोनों आता है। और ये लोग जो डेयरी कंपनीज होती है वो लोग उसके अंदर भी फिर केमिकल डाल के उसको वापस सफेद बना देते हैं। आप में से अगर कोई भी चाहे तो मैं ये ओपन चैलेंज देता हूं, आप लोग जा सकते हैं और जहां पे वो दूध निकालते हैं और फिर डेयरी में लेके जाते हैं, जहां पे दूध निकालते हैं वहां पे आप जाके देखिए, कम से कम 10 गाय या भैंस में से कम एक के दूध में ब्लड और पस होगा ही। और वो ब्लड और पस वाला दूध जिसके ऊपर फिर केमिकल्स लगे, वो पीलापन और लालपन हटाने के लिए वो सारा दूध हम दूध समझ के पी रहे। और काफी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि छाती के नीचे, मतलब पैंक्रियास से लेकर नीचे प्रोस्टेट तक, पेट के आसपास के जितने कैंसर्स है वो सारे दूध पीने से होते हैं। ऐसी भी दूध स्टडीज पीने से अच्छे होते अच्छे हैं। यूनिवर्सिटीज ने की है। हाँ, दूध पीने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटीज 1000 फोल्ड बढ़ जाती है, और बहुत पुरुषों ज्यादा में है। हाँ करेक्ट। प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटीज हाँ बढ़ जाती है। सो ये करेक्ट कैंसर करेक्ट। एक जिन जो हम वर्ड कहते हैं, एक वर्ड है जिसमें वो कैंसर तत्व पाया जाता है, वो कहते हैं कि मीट में जितना पाया जाता है उससे कहीं अधिक मात्रा में वो दूध में पाया जाता है। दूध में पाए कि कार्सिनोजेंस बोलते हैं उनको, कार्सिनोजेंस। हाँ हाँ जी। हाँ। सो ये है। सो जस्ट अ सेकंड। हाँ भव्य, आई डोंट नो इफ वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इफ यू वांट वी कैन हैव अ लॉन्ग चैट ऑन द फोन एंड आई कैन टेल यू एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विथ मिल्क एंड एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिल्क। एंड बाय द वे, अभी क्या होने लगा है सर कि मुझे रोज एटलीस्ट 2-4 लोगों के फोन आते हैं, पूरे वर्ल्ड में से आने लगे। सो अब हाँ मैं जी। ट्राई करूंगा एटलीस्ट एवरी डे में एक जन के साथ ऐसे इंस्टाग्राम लाइव कॉल करूं, ताकि दूसरे लोग भी ये सब चीजें, यही बातें सुन सकते, जो मैं बात बता रहा हूँ वही दूसरों के मुंह से भी सुन सकते हैं। हाँ जी। वेरी नाइस सर, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने जैसे बताया आपको, मेरा जो डाइट है उसमें पीने में मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, पानी के सिवा कुछ नहीं। और हाँ जी आप। खाने में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है और सीड्स है। बट अब से मैं ट्राई करने वाला हूँ धीरे धीरे करके कि अब से मैं सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आ जाऊं, मतलब 70% वेजिटेबल्स एंड 30% फ्रूट्स, नॉट इवन एनी नट्स एंड सीड्स। देखते हैं क्या होता है। मैं जितना पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सही है, फिर देखा जाएगा आगे क्या क्या होता है। आप भी सर अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो मेरे साथ शेयर करते रहना। आई विल ऑल्सो कीप शेयरिंग विथ यू कि मेरा जर्नी कैसा रहता है फूड के साथ, हेल्थ के साथ वगैरह, ओके सर, डेफिनेटली। है ना। बट दिस इज फॉर श्योर कि पका हुआ खाना छोड़ने से कई बीमारियां अपने आप चली जाती है।
और स्फूर्ति रहती है। आप जब सुबह उठते हैं तो एक एक एनर्जी सा फील होता है। हाँ, ये तो है, ये श्योर है। बाकी आई एम होपिंग फॉर द रिकवरी विच आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन, सो डेफिनेटली आई, with your help and your mastered knowledge, because you have mastered this art in many years, definitely if some you we can learn from somebody, we should definitely learn. So with your mastered knowledge, I will try to improve, and I will try to overcome this hurdle which is coming in my academic life and also in my social and पर्सनल लाइफ। other lives. So definitely I will try that. पर आपने बोला ही ना, आपका गर्दन तो ऑलरेडी, आपका मोबिलिटी आ गया गर्दन में वापस। हाँ हाँ हाँ, हम्म। गर्दन में तो ऑफ है। कोर्स सर, कभी भी आपको कुछ भी लगे, कुछ ज्यादा खाने का क्रेविंग हो रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा कभी ज्यादा लगा तो मैं आपसे बात करूंगा। दिस इज हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर। क्योंकि ये पका हुआ डेफिनेटली सर। खाना जो है वो पिछले 10,000 सालों से, जब से खेती बाड़ी शुरू हुई तब से ही हुआ है। उसके पहले हम लोग का ये हाँ डाइट था ही नहीं। और सारे डिजीजेस जो है वो सारे डिजीजेस ही एग्रीकल्चर के थ्रू, इंक्लूडिंग कोरोना। कोरोना भी जो है वो हाँ, मीट मार्केट में से है। सो सब एग्रीकल्चर फूड के बॉर्न। रिलेटेड ही, कैंसर से लेके सारे डिजीजेस उसी से रिलेटेड है हमारे। अगर आप जब पैदा हुए हैं और स्वस्थ हैं, और उसके बाद आपके शरीर में कुछ बीमारियां जन्म लेनी शुरू हुई है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फूड और आपकी लाइफस्टाइल से आई है। बस करेक्ट। यही है हाँ, बेसिक फंडा। मेरा भी जो स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको भी पता है, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस है वो मेरे जीन्स में है। मतलब मेरा हाँ स्पॉन्डिलाइटिस कभी ठीक नहीं होने वाला। बट हाँ मेरी लाइफस्टाइल अगर सही है तो मुझे उस स्पॉन्डिलाइटिस से कोई असर ही नहीं होता। अगर मेरी हाँ लाइफस्टाइल गलत है तो मेरा चलना उठना बैठना सब हराम हो जाएगा। हाँ, सब वही है। शायद मेरे जीन्स में हो, शायद मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो या ना हो, क्योंकि मैंने वो टेस्ट नहीं करवाया है। बट हम्म। सिम्टम्स आर शोइंग दिस ओनली। जो आपका जर्नी थी लगभग उसी तरह की जर्नी दिखा रही है कि क्या क्या फेस हो रहा है, सिमिलर रिलेटेबल थिंग। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली इफ आई हैव दैट और नॉट, बट एटलीस्ट आई एम फेसिंग दिस पर सेम वो इशू। फायदा ही क्या, आपने देखिए ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप गैस्ट्रो वाले के पास गए तो उसने टाइफाइड और जॉन्डिस निकाल के दिया। आप हाँ, हीमेटोलॉजिस्ट के पास गए तो उसने थैलेसीमिया माइनर निकाल के दिखाया। आप वो ऑर्थोपेडिक के अल्टीमेट पास एम गए क्या तो है? उसने अपना पोस्टर अल्टीमेट एम दिखाया। क्या है? इन रिपोर्ट्स के चक्कर में ना पड़ते हुए, अगर हमारी बॉडी फ्रेश फील कर रही है, पेनलेस फील कर रही है, एंड यू आर बेसिकली हैविंग एनर्जी, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यू हैव जीन्स ऑफ दैट काइंड, और आई हैव थैलेसीमिया माइनर, और यू हैव स्पॉन्डिलाइटिस कुछ वाला नहीं, जीन। तो सबके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है, उससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए रियली। हाँ, सो बस वही है कि पेनलेस है, फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो, और अपने अपने जीवन का कुछ सही उपयोग कर रहे हो, दैट्स इट। दैट इज द दैट्स अल्टीमेट एम। एक्चुअली, हाँ, बाकी टेस्ट कराने जाओगे तो कुछ ना कुछ सबके बॉडी में से निकलेगा। आई एम श्योर इवन विराट कोहली के भी अगर हमने सारे टेस्ट किए ना तो उसके बॉडी में से भी कुछ भयंकर बीमारियां निकल आएगी। हाँ, वो तो है। सो कोई सवाल नहीं। But I'm very happy, Gaurav, when we have to be in touch. Please call me Yogen. We are both teachers, we are both friends, and मुझे बहुत अच्छा लगा यार आपने फोन किया। मुझे एवरीडे कॉल आते हैं, मतलब आगरा से, आज आगरा से आया था, फिर बॉम्बे से आता है, आपने कर्नाटका से किया, किसी ने इंदौर से आज फोन आया था एक। मतलब इंडिया से और यूएस से, पूरे वर्ल्ड में से ऑलमोस्ट एवरीडे फोन आते हैं। और हर आदमी यही बताता है जिसने भी So दूध छोड़ दिया। basically, so basically, you can see the suffering. Suffering is everywhere, and एवरीवेयर। if somebody finds a hope, they want to cling on that hope, and they want to basically करेक्ट। again go to the side of positivity. So if यस। we can be part of somebody's journey, and we can also help and share this information with others, then why not? हाँ, लोग मुझे बताते हैं कि मतलब जिन्होंने भी दूध छोड़ा है, हर एक आदमी खुश है। एक आदमी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि मैं दूध छोड़ने के बाद मैं कमजोर हो गया। किसी ने नहीं। हाँ सब लोगों ने यही बताया कि दूध छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, मतलब हल्का हल्का फील होता है बॉडी। फिर काफी लोगों ने ये बताया कि सुबह को नाक और कपाल सब खुला रहता है। I think Gaurav is facing some issues again. I think we are almost at the end of this call. Products, they are for animals, they are not for us. And stay away from cooked food. Cooked food, any food that needs processing is not the food for us. अगर आप वो खाना आपके लिए है तो उसको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसको अगर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ रही है तो वो खाना आपके लिए नहीं है। I don't know if anybody has any questions, please ask. Otherwise, I'll come back again tomorrow with somebody else. I'm talking to people every day, and these are people like you and me. कोई students है,
कोई टीचर्स है, कोई आर्किटेक्ट्स है, कोई खुद डायटिशियंस है, डॉक्टर्स भी है, जो लोग खुद परेशान है बीमारियों से और उनके पास इलाज नहीं है, and they are trying to change their lifestyle. So around this time every day in the evening I'll try to make a live episode on talking to people who have somehow managed to fix themselves, जिन्होंने अपनी बॉडी को खुद ठीक किया है. So we'll speak to them. Pooja, you want to come in? Yeah, sure. Okay, no. क्रीम मिले उसके लिए कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं अनमोल? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. के यू वांट टू कम इन? ओके. ओके, ओके. नो, आई थिंक वी हैव सम कनेक्शन इश्यूज. नो प्रॉब्लम, विल ट्राई अगेन टुमारो. और क्या आपने व्हाट्सएप किया ना, मैं आपको वापस कॉल करता हूँ उस पे. थैंक यू. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. थैंक्स फॉर वाचिंग. Stay healthy, stay fit, stay happy, and I'll see you all soon.